हालेलुया। बड़ी बरकत मिली है, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर एक आँख उसे देखेगी जब वो बादलों में आएगा। हमें से कौन कौन है जो जब वो बादलों पे आ रहा हो तो उसको देखना चाहता है? रॉन्ग, क्योंकि देखेंगे वो लोग जो नीचे होंगे, हम आ रहे होंगे। हालेलुया। सर हम तो जो बाइबल में लिखा है कि हर एक आँख उसे देखेगी और लोग उसके सबब से छाती पीटेंगे। So when people will see him, they'll cry and they'll be like, what have we done? So we won't see him coming, we will actually come with him. Yes? We will be raised to the heaven. हम बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। और जब वो जमीन पर आ रहा होगा तो फिर हर आँख जो उसे देखेगी, हम उसके साथ होंगे। इसको थोड़ा सा कम कर देना। Praise God. Yes, that's one. वैसे मेरी आवाज़ थे ऊंची हुई है। So हमने Bible says nobody knows the day and the hour of his coming. किसी को नहीं मालूम। ये मैथ्यू चैप्टर 24 में लिखा हुआ है कि nobody knows the day and the hour. But God has given us so many signs, so many things to look at. So आज का जो सेशन है हम इसको 3 हिस्सों में देखेंगे. We'll divide it into 3 different sections. First section will be what has happened already. क्या हो चुका है? What time it is. Second will be what is yet to come. And third one will be how shall we behave. हमें कैसे जो है वो तैयार होना है. So बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाइबल में. The reason why God did not want us to know the exact day. So then ऐसा ना हो कि हम जो है we will be ready a day before he is coming. So he wants us to be ready every day. Hallelujah. हर रोज तैयार हो. लेकिन he has given us enough reasons and enough things जिसके बारे में हम जब जानेंगे, क्योंकि according to 1 Thessalonians chapter 5 it says आपको बताने की जरूरत नहीं है. There is no need for you to know because you are believers. You should be ready. So there is no need for you to for us to tell you that you should be ready. The church by default should be ready because we have the Bible. We have the हमें हमारे पास जो है वो ऑरिकल्स हैं, बाइबल है, हमारे पास जो है ये कलाम मुकद्दस के सहीफे हैं. सो हमें तैयार होना चाहिए. However, we definitely can learn some timeline. और उसके लिए मैं बुक ऑफ डैनियल में आपको लेके जाना चाहता हूँ. This is one prophecy called 70 weeks of Daniel. So Daniel chapter 9 में हम देखेंगे 70 weeks of Daniel. दानियल की रोया के 70 हफ्ते. So 9 verse 24 में देखेंगे. Daniel chapter 9 verse 24. तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए. For your people and for the beloved holy city 70 weeks have been assigned. ठीक है. किसके लिए? कौन से 2 चीजें हैं? तेरे लोगों, the people and the city. मेरे पीछे रिपीट करें. The people and the city. 70 weeks. 70 weeks. So क्या है कि 70 weeks means 7 into 7. So that's 490 in total. So according to the Bible scholars या Bible theology जो है 1 day equals to 1 year. So when we say 70 into 7, that means 490 years. 490 साल का अरसा दिया गया. किनको? तेरे लोगों को और तेरे शहर. Which city is he talking about? Jerusalem. कौन से लोगों की बात हो रही है? Jewish people. ये बात है. क्योंकि डैनियल के लोग कौन थे? Who were the people of Daniel? डैनियल के लोगों से था. Jewish people. So he is talking about Jewish people and the city of Jerusalem. And 70 weeks. लेकिन it's not straightforward 70 weeks. It's been divided into 3 sections. कितने sections में बनाया गया? 3 हिस्सों में इसको divide किया गया. 62 weeks, 7 weeks and 1 week. 3 sections. कौन कौन से? 62 weeks, 7 weeks, 1 week. ठीक है. तेरे लोगों और तेरे शहर में. So जब हम कोई खाना बनाते हैं, when we cook something, we need ingredients, and the 2 main ingredients are your people and your city. They need to be in the land.
उनको जमीन में उस वक्त इसराइल की जो जमीन में उसमें होना जरूरी है. The problem was that, or not the problem, the reason why it didn't kickstart at the point when Daniel was looking at this or listening to this wonderful revelation, जब उसको ये मिल रहा था, he was not in the land because the people were in captivity. वो Babylon में थे, वो बाबुल की जमीन में असीरी में थे. So this prophecy would only kickstart when the people will go back, और city जो है वो rebuild हो गया. So Jerusalem was in ruins and people were in captivity. So in order for this prophecy to kickstart, those two things need to be together. उन दोनों का जुड़ना बड़ा जरूरी है. So it started in the book of Nehemiah and Ezra. So if you go in the book of Nehemiah and Ezra, please go home and read. That was the time of King Cyrus the Great of Persian kingdom. उसने हुक्म दिया था. And if you go to British Museum, please लंदन में जाएं, British Museum देखें, वहाँ पे आपको Cyrus's cylinder मिलेगा. Cyrus's cylinder. There is something called Cyrus's cylinder. और वो सिलेंडर जो है उसके ऊपर वो पूरी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो कि बाइबल में लिखी हुई है, exactly word by word. So that proves कि Bible is correct. ये कोई विशी-वाशी, Bible is not like a mythology. It's actually a real book. So Cyrus का जो फरमान था, उसका जो डिक्री थी, that's written on that cylinder, talking about Israelites going back into the land of Judea and Samaria, and city of Jerusalem being rebuilt, जो कि Nehemiah के टाइम में थे. कौन से दो इंग्रेडिएंट्स हैं? तेरे लोग और तेरा शहर, your city and your people. So पहला जो उसका जो था उसमें लिखा है कि if we go to 25 verse, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से. So from the time when Jerusalem will be restored and rebuilt to the Mansuf al-Marwa, to the anointed king. ठीक है ना? So ये एक टाइमलाइन दी है. So पहला जो टाइमलाइन है वो है 62 weeks. 62 weeks are 434 years. So 62 into 7 that's 434 years. उसका जो निशान था वो 26 वर्ष में दिया गया. After 62 weeks, 62 हफ्तों के बाद, that anointed king, the Messiah, वो मंसूर जो है वो कत्ल कर दिया है. So it starts with the rebuilding of Jerusalem and it ends with the killing of Jesus Christ, the Messiah. So क्या होता है? And that's 434 years. Year 398 BC में Jerusalem restart हुआ, build होना, और decrees हुई, and Nehemiah, almost 400 years before the birth of Jesus Christ, he started building everything. So क्या हुआ कि लोग वापस आ गए, Jerusalem rebuild होना शुरू हो गया. So prophecy kick start हो गई. So that unlocked the first stage. मुझे याद है बचपन में हम वीडियो गेम्स खेलते थे, हम stages unlock किया करते थे. So first stage was unlocked as soon as the decree was given, people came back, the city was rebuilt. That's it. What happened after 434 years later? Year 32 AD, Jesus Christ was crucified. Exactly as Daniel said. जैसे दानियल ने कहा कि मसाया जो है वो कत्ल कर दिया. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि Jesus Christ goes back into heaven. यीशु से आसमान पर चले गए. और उसके तकरीबन after 40 years after the resurrection of Christ, Jerusalem gets destroyed. 70 AD में रोमन एम्पायर आती है, एड्रियन आता है, वो सारा तबाह कर देते हैं. Because 70 AD में क्या हुआ कि Rome caught a fire, the whole city was burnt up. और ब्लेम किस पर आया? ज्यूज पर. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिटी तबाह कर दिया और ज्यूज को निकाल दिया. They dispersed every Jewish person from the land into different countries. और वो जो चीजें थी, they never came back until the modern times. जो मॉडर्न है इजराइल है वो कब बना था? 1948. So क्या हुआ कि 1948 में लोग वापस आना शुरू हो गए. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सो मच पेन, बर्थ पैंग्स जिसको कहते हैं, सारा कुछ हुआ. 6 million Jews were killed. क्यों? क्योंकि they didn't want to come back to the land. अब they were settled, वो खुश थे अपनी जगहों पे. लेकिन क्या हुआ कि इतनी परसिक्यूशन हुई कि they decided कि हम वापस जाएंगे. 1948 में क्या होता है कि सारे मोस्टली ज्यूज वापस आ गए. लेकिन there was one thing missing.
वो दो इंग्रेडिएंट क्या थे? तेरे लोग और तेरा शहर, योर सिटी। शहर कब आजाद हुआ था? There was a war for 7 days in 1967. That's when they got Jerusalem back. So क्या हुआ कि दोनों जुड़ गए, तेरे लोग और तेरा शहर। और 1967 में क्या होता है कि the second period which is 7 weeks starts. 7 into 7 कितना होता है? 49. So 1967 में 7 weeks का जो second time period है, second stage है, वो start हो गई। And 2016 में आकर वो finish हो गई। 2016 में क्या होता है? Donald Trump became the prime president. क्यों? क्योंकि ये हुआ था कि when Israelites came back, their capital was Tel Aviv, not Jerusalem. और 3000 साल पहले किंग डेविड ने जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया। सो मॉडर्न टाइम में ड्यूरिंग 7 weeks पीरियड जेरूसलम कैपिटल नहीं था, इट वाज जस्ट अ सिटी, एक ऐसा सिटी था जो कि जॉर्डेनियन रूल के अंडर था और कैपिटल डिक्लेयर नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में जब वो इलेक्टेड हुआ, फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही मूव्ड द एम्बेसी इनटू जेरूसलम, ही डिक्लेयर्ड इट एज द कैपिटल बना दिया। सो क्या हुआ कि वो भी पीरियड फिनिश हो। लेकिन तीसरे के लिए some more ingredients were added. So we go back into Daniel chapter 9 verse 27. लिखा है कि वो एक हफ्ते के लिए, so that 1 week. So we still haven't seen that 1 week starting. So अभी ये start नहीं हुआ। उससे पहले क्या होगा कि लिखा है कि in the middle of the week. So first thing is वो एक हफ्ते के लिए बातों से अहद कायम करेगा। Who is he? ये जो he है ये एंटी क्राइस्ट है। वो क्या कहता है कि for 1 week he will cut the covenant with so many people. In the middle of the covenant he will put an end to the sacrifices. वो ज़बीहे और हदीये को मौकूफ कर देगा और जो फसीले हैं, जो वॉल्स हैं, उन पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी, abomination of desolation, ये सब है। So आखिरी दौर में क्या होता है कि for 1 week it actually is more than तेरे लोग और तेरा शहर। इसमें वो क्या करते हैं कि इसमें अहद कायम किया गया, the treaty, the peace treaty। दूसरा क्या है कि they allowed the sacrifices, daily sacrifices। यहूदियों ने 2000 साल से daily sacrifices नहीं किए, उनको 2000 साल हो गए, they haven't been doing the sacrifice। क्यों? क्योंकि नई कहानी शुरू हो गई, because of the pouring of the Holy Spirit। क्योंकि होली स्पिरिट आ गया ना, तो खुदा का काम ऐसा है कि दे कैन नॉट परफॉर्म इट, बट एंटी क्राइस्ट विल कम एंड ही विल अलाउ देम। सो अगर हैकल बन गया, वी शुड बी रशिंग डाउन टू जेरूसलम एंड से ओ हैकल बन गई, बिकॉज़ आवर टेंपल इज इन हेवन। हालेलुया, हमारी तो हैकल आसमान में है। लेकिन क्या है कि आखिरी दौर में फ्यू मोर इंग्रेडिएंट्स वर एडेड। वन वाज सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस के लिए यू हैव टू हैव द टेंपल, और इसके लिए थेसलोनियंस में लिखा हुआ है इन लेटर ऑफ थेसलोनियंस, सेकंड लेटर ऑफ थेसलोनियंस, और उसके सेकंड चैप्टर के वर्स 3 में लिखा हुआ है कि किसी तरह किसी के फ्रेम में ना आना, लेट नोबडी डिसीव यू, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा इससे पहले कि बरगश्तगी ना हो। बिफोर द डे विल कम पीपल विल फॉल अवे। दुनिया में जो है वो बेदीनी फैल जाएगी। लिखा है कि वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा, मैन ऑफ सिन विल अपीयर, जो मुखालफत करता है, द एंटी क्राइस्ट। और लिखा है कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर ही सिट्स इन द टेंपल और अपने आप को खुदा जाहिर करता है। सो क्या है कि इफ वी लुक बैकवर्ड्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइमलाइन इज गॉन, वो हो चुका है। सो वी आर वेटिंग फॉर वन लास्ट वीक, जो 1 लास्ट 7 years है, उसका हम वेट करें। बट बिफोर दैट हैपेंस देयर नीड्स टू बी सम प्रीरेक्विजिट्स, सम थिंग्स नीड टू हैपन। उसका पहला पार्ट क्या हुआ था कि 2016 में as soon as the second part of that 70 weeks prophecy finished, Jerusalem was declared as the capital. अभी ये जो ईरान वॉर हो रही है, that is going to end in a peace deal between Middle Eastern countries, and a leader will emerge जो कि इनके दरमियान में करवाएगा, and the end goal will be a truce between Muslims and Jews। और उसका क्या है कि अभी अगर आप जेरूसलम में जाएं, there is an entity called Jerusalem, sorry, the Temple Institute। उन्होंने सारे जो उनके जो वो थे, क्लोथ्स थे प्रीस्ट के, सारे जो सर्विंग वो बर्तन थे, everything is ready।
और अभी क्या है कि दे आर पुटिंग द कॉर्नरस्टोन। रेड हेफर्स जो थे वो मिल गए उनको, जो कि सुर्ख रंग की बच्चियां है, वो 2000 साल से पैदा ही नहीं हुए थे दुनिया में, एंड सडनली दे गॉट बॉर्न। और वो 5 इनको मिले हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लेंजिंग ऑफ द प्रीस्ट। इससे पहले कि प्रीस्ट जो है वो टेंपल में सर्व करें, दे विल वॉश देमसेल्फ इन द वाटर दैट हैज द एशेज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज रेड काउज जो है, उनके जो है वो उनको जलाते हैं, उनकी राख लेके पानी में डालते हैं, पानी में घोल के उस पानी से वो नहाते हैं। और फिर जो है उसके बगैर, इस रिचुअल क्लेंजिंग के बगैर, दे कैन नॉट गो इन द टेंपल एंड सर्व इन द टेंपल। टेंपल कैन नॉट बी जो है उसकी जो है ऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, उसकी पाकीज़गी नहीं हो सकती। तो क्या है कि ऑल दोज पीसेस आर नाउ पुटिंग इन बीइंग पुट इनटू प्लेस, और आखिरी वीक जो है वो शुरू होने का है। So the temple will be rebuilt on the Temple Mount, where you see the golden dome of the rock, the Muslim mosque. Alongside that, they will build another structure. वहाँ पर altar बनाया जाएगा, and they will start doing the sacrifices. That is the time when the next or the last week or the next stage will be unfolded. As soon as that happens, and it's called abomination of desolation, जिसके बारे में मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 24, कि जब तुम उसकी 15 वर्ष उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, when you see the abomination of desolation in the temple mount, in the holy place, लिखा है कि वहां से फिर भाग जाओ, don't come back, क्योंकि वो लास्ट 7 years है। और वो कैसे किक स्टार्ट होंगे, अब हमें समझ आ गई है कि हम कहां पे खड़े हैं। So where do we stand? Majority of the prophecy is gone. So we are waiting for the one last thing. इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आए, मुखालफे मसीह आएगा, the antichrist will come। और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक चीज है जो उसे रोके हुए है। There's one thing that is stopping him। बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में बोलते हैं कि it's Holy Spirit. Actually, it's the seals that still haven't been broken. क्योंकि that's when the book of Revelation will kickstart। बाइबल में रेवलेशन पढ़े, मुकाशवा, प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी है, उसको पढ़े, उसमें 7s का बहुत ज्यादा जिक्र है। Why? Because 7 is completion। खुदावंद ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम किया, so the whole week was complete। 7 talks about Sabbath, the coming rest, the kingdom of God। तो क्या है कि 7 seals हैं, 7 trumpets हैं, 7 bowls हैं। तो इस तरीके से there is a sequence of things। तो क्या है कि फर्स्ट सील अभी शुरू नहीं हुई। lot of people thought कि कोविड जब आया तो पहली सील जब ब्रेक होगी। नो, दैट वाज अ टेस्ट रन। किस चीज का टेस्ट रन था? कि will the world agree to receive something on a universal level in the name of health and traveling or whatever whatnot, good life। क्या हुआ कि उन्होंने आप सबको टीके लगा दिए। Obviously the टीका wasn't the mark of the beast, वो mark of the beast नहीं था, लेकिन क्या था? It was a practice run। They wanted to change the mindset। They wanted to see will be accepted। क्या हम इसके बारे में ओके होंगे? Majority of the world was okay because क्या था? हमारा privilege आ रहा था, travel नहीं कर सकते थे, job पे नहीं जा सकते थे, आप shopping नहीं कर सकते थे। A lot of those things जो कि आखिरी ज़माने में Antichrist करवाएगा, they'll force people into taking the mark of the beast, जो कि AI based है and all that, so I'll touch upon that। However, Bible says there is one thing that is stopping it। और one thing क्या है? The seals haven't been broken। सील्स को तोड़ने के लिए क्या लिखा है? ये रेवलेशन चैप्टर 5 में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 5वां बाब, मुकाशवा 5वां बाब, 7 सील्स लिखा है कि जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। There was a book, there was a document that was written from the both sides, दोनों साइडों पे लिखा हुआ। कौन सा डॉक्यूमेंट बाइबल में है जो कि दोनों साइड से लिखा है? मेरे साथ देखें, एक्सोडस, कूच की किताब, एक्सोडस, खरूज, उसके हम चैप्टर 32 में जाएंगे। Exodus chapter 32. There is one book only in the Bible. Oh, there is one document. There is one thing that is actually written on the both sides. Chapter 32, verse 15. मेरे लिए कोई पढ़े जाए। Exodus chapter 32, verse 15. English में भी पढ़ सकते हैं। If you have English Bible, do that, or whatever language. Exodus 32, verse 15. और मूसा शहादत की दोनों लोहें आपने हाथ पे लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर से
और उधर से दोनों तरफ से Amen. लिखी हुई थी। Praise God. लिखा है कि Moses came down from the mountain and he had the tablets in his hands. और वो दोनों तरफ से लिखी हुई, इधर से और उधर से। और बाइबल में लिखा है मुकाशवा में कि he was holding a book जो कि दोनों तरफ से लिखी हुई। It was written on both sides. दोनों तरफ से क्यों लिखी हुई थी? When God gave His commandments, when God gave His word, He said कि इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें blessing है, इसमें curse है, इसमें मौत है, इसमें जिंदगी है, इसमें बरकत है, इसमें लानत है। So दो कमिंग्स भी हैं। पहली कमिंग में when Christ died, the seals were broken और हमारे लिए दरवाजा खुल गया। हालेलुया। निजात का दरवाजा, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा, वो दरवाजा जो गार्डन ऑफ ईडन में जाने के लिए बंद कर दिया गया। बाइबल में लिखा है कि जब उसने चलाकर जान दी तो पर्दा बीच में से फट गया। हालेलुया। सो दैट वाज द सील ब्रोकन। और क्या हुआ था? वो सील जब ब्रेक हुई, हमारे लिए बरकत का दरवाजा, ब्लेसिंग्स आ गई। लेकिन आखिरी जमाना में क्या होगा कि सील्स फिर खुलेंगे। बाइबल में लिखे देयर इज वन दैट इज स्टॉपिंग हिम, एक चीज है जिसे रोके, एंड दैट इज क्राइस्ट। शैतान जितना मर्जी कह ले जी मैं पावरफुल, मैं ये मैं वो, दुनिया को कहेगा तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम ये करोगे। जैसे उसने जीसस को कहा था कि इफ यू बाउ इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने सिजदा करो तो मैं सारा कुछ तुम्हें दे दूंगा। और बाइबल में रेवलेशन 13 में लिखा है कि वो जो बीस्ट आता है वो लोगों को पावर दे देता है बिकॉज दे बाउड इन फ्रंट ऑफ हिम। लेकिन क्या है कि वी मस्ट रियलाइज अनलेस क्राइस्ट ब्रेक्स द सील, जब तक यीशु नहीं चाहेंगे मुखालिफ सील नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक यीशु नहीं चाहेंगे शैतान भी अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है कि दुनिया पर मुसीबत तो आनी ही है, लेकिन इट टेल्स, बाइबल में लिखा है कि कोई भी उन मोहरों को तोड़ने के लायक नहीं निकला था। देन आई सॉ, और उनमें से जो 24 एल्डर्स थे उनमें से एक ने मुझे कहा कि यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है वो गालिब आया है, क्योंकि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो क्या है कि एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज इन गॉड्स कंट्रोल। सो अगर खुदा के कंट्रोल में है तो हमें फिर वरीड होना चाहिए। लोग डरते हैं कि व्हेन पीपल रीड बुक ऑफ रेवलेशन दे गेट शिवरिंग्स और कहते हैं वो बड़ा कुछ हो रहा है। नो, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करेगा। जिसने 2 मिलियन लोगों को 40 साल बियाबान में मन खिलाया, जिसने उनको खाना दिया, जिसने उनको पानी दिया चट्टान में से, जिसने उनके कपड़ों को फटने ना दिया, उनकी जूतियों को घिसने ना दिया, हाउ कम एंटी क्राइस्ट जो है वही चीज हमें दे रहा है ना कि अगर आप मेरा मार्क या मेरी छाप नहीं लोगे तो तुम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। We don't need to buy and sell because our Christ, our Lord is provider. Hallelujah. यहोवा यरी है, वो आसमान पर से मन बरसाता है। उसके कलाम में लिखा है कि वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है और हमारी जान को बहाल करता है। खां मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया। So आखिरी जमाना में obviously there are two schools of thought. Some people think or believe will be raptured before the tribulation. Some people believe after the tribulation. ठीक, लेकिन it doesn't matter because we should be ready. मैं ये कहता हूँ कि we should be happy about pre-tribulation rapture, लेकिन we should be ready for post-tribulation rapture. हमें जो है मुसीबतों के दौर में से गुजरना पड़े, we should be ready for that. ठीक है। और दूसरी बात यह कि 2000 साल से कलीसिया मुसीबतों में से गुजरी है। So क्या हुआ कि जब वो सील्स खोलेगी, that's when the 7-year time period will start. Bible says the first horse comes, जो कि white color का है, वो पीस डील करेगा, क्योंकि लिखा है ना कि वो बहुतों से अहद बांधेगा। So Antichrist will come and he'll kick in the peace deal. और उसके बाद लिखा है कि दूसरा हॉर्स आता है जो कि रेड कलर का है सेकंड सील पे, जो कि जंग को लेकर आता है। In the middle of the week, 3.5 years later, क्या है कि वो पीस खत्म हो गया और जंग शुरू हो गई। Why 3.5? जीसस क्राइस्ट ने जब खिदमत शुरू की, he was 30 years old. लेकिन जब उनकी डेथ हुई, कितने उनकी जिंदगी थी? 33.5. So Christ served for 3.5 years. So Antichrist will be given 3.5 years. और हमें कैसे उसमें बिहेव करना है इसके बारे में जेम्स ने एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी। जेम्स के लेटर में जाएंगे और उसने कहा, ये बेसिकली ही इज रिलेटिंग इट टू द टाइम ऑफ इलाइजा, जब बारिश नहीं हुई थी, वो टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन था उनके दौर का। और जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान ना था, उसने बड़े जोर से दुआ की और मीना बरसा, चुनाचे 3.5 बरस जमीन पर मीन
ना बरसा। तो क्या है कि 3.5 years का जो आखिरी टाइम पीरियड है वो किक स्टार्ट होगा और उस दौरान में काफ़ी चीज़ें होंगी। सो बाइबल इस टाइम पीरियड को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करती है। देयर आर 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। कितनी है? 4। एक है 3.5 साल। कितने? 3.5 साल। इसी टाइम पीरियड को बाइबल में 1260 दिन भी बोला गया, 1260। जब हम उनको काउंट करते हैं तो 3.5 साल होते हैं। इसी तरीके से इसी दौर को जो है वो 42 मंथ्स भी बोला गया, 42 मंथ्स 3.5 साल। और एक और जगह पर लिखा है 1 दौर, 2 दौर और 3 दौर, यानी कि टाइम, 2 times and a half time। सो ये है कि लेकिन ये सारे जो हैं वो सेम चीज को बता रहे हैं। उन 3.5 साल में क्या होगा? उन 3.5 साल में जो है वो मुखालिफ मसीह जो कि 3rd हॉर्स आता है, लिखा है कि उसके हाथ में एक तराजू है, वो सारी दुनिया में रैशनिंग करेंगे, दे विल कंट्रोल द फूड सप्लाई। उसके बाद लिखा है कि मौत नाम का घोड़ा आता है, जर्द रंग का, जो पेल हॉर्स है, ग्रीन पेल हॉर्स, वो उसके ऊपर लिखा है कि दे विल पनिश 1/4 ऑफ द पीपल एंड दे विल किल देम बिकॉज पीपल विल नॉट टेक द मार्क ऑफ द बीस्ट। वहां पर बहुत लोगों को मारा जाएगा। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल हैपनिंग। उन्हीं 3.5 साल में 2 witnesses will come as well in the city of Jerusalem। 2 गवाह आएंगे जो कि एलाइजा एंड मोसेस हैं, एलिया और मूसा है। क्योंकि पहाड़ पर जब खड़े थे, खुदावंद यीशु मसीह इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 में जब हम पढ़ते हैं तो एलिया और मूसा वहां पर खड़े, दे वर स्टैंडिंग विद जीसस क्राइस्ट। क्योंकि जब 2 गवाह आते हैं तो बाइबल में लिखा है कि एक जो है वन विल कास्ट द फायर टू कम डाउन, और दूसरा जो है वो पानी को खून बना देगा। सो क्या है कि पानी को खून वाला जो मौजज़ा था वो मोसेस ने किया था, और आसमान से आग वाला जो मौजज़ा था वो एलाइजा ने किया था। सो ये 3.5 साल में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन चर्च के साथ क्या होगा? मेरे साथ देखें चैप्टर 12 में, आइज़ाया चैप्टर 12 वर्स मुकाशफा, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 6। इसको कोई मेरे लिए पढ़ लो, चैप्टर 12 वर्स 6। नहीं, और वो औरत, मुकाशफा रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 6। वो औरत उस बियाबान को भाग गई इसके लिए उसके लिए जगह तैयार की गई थी ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। हालेलुया। वो औरत कौन है? कलीसिया की बात की। शी रैन इनटू द विल्डरनेस। क्या है कि हमें जैसे पुराने दौर की कलीसिया को विल्डरनेस में खुदा ने बचाया था। सो क्या है कि लेट्स से वी हैव टू गो थ्रू द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। तो लिखा है कि 1260 दिन तक उसकी परवरिश की गई, दे वर टेकन केयर ऑफ। और इसी तरह वर्स 14 में लिखा है कि उस औरत को बड़े उकाब के से 2 पर दिए गए ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी जगह पर पहुंच जाए जहां एक जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाएगी। सो दैट इज द टाइम जब 7 ट्रम्पेट्स जो हैं वो किक स्टार्ट होंगे। सो क्या है कि 7 सील्स आर इमर्जेंस ऑफ एंटीक्राइस्ट। व्हेन एंटीक्राइस्ट विल कम, मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 7 ट्रम्पेट्स जो हैं, दैट्स हेवन्स रिस्पॉन्स टू द एंटीक्राइस्ट। क्या है कि 7 नरसिंगे जब बजाए जाएंगे तब क्या होगा कि खुदा की तरफ से मुखालिफ मसीह, उसकी फौज, उसका जो एरिया है उस पर मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। सो गॉड विल रिस्पॉन्ड बैक एंड प्रोटेक्ट हिज पीपल। और क्या है कि जब 6 नरसिंगे बज जाएंगे तो बाइबल में इसका जिक्र है 7th ट्रम्पेट का। मेरे साथ देखें चैप्टर 11 में उसकी वर्स 15। जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि एट द टाइम ऑफ 7th trumpet everybody will raise from the dead if you are a believer। बाइबल में लिखा है there is only one other place जहां पर 7 नरसिंगों का जिक्र है, that's Joshua chapter 6। जब बनी इसराइल को यह हुक्म दिया था कि तुमने 7 नरसिंगे लेने हैं और तुमने जेरिको के गिर्द घूमना है और आखिरी दिन 7 दफा घूमना है। जब नरसिंगे बजाओगे तो शहर गिर जाएगा। इसी तरीके से जब फरिश्ते नरसिंगे बजाएंगे तो क्या होगा कि वो शहर गिर जाएगा। नरसिंगे क्यों बजाए जाते हैं? वाई ट्रम्पेट्स? लोगों को बुलाने के लिए, कॉल टू वर्शिप।
to wake up, to start a new season, to go for the war. All of these things were done through और लोगों को तैयार करने के लिए. और क्या है कि फरिश्ते जब नरसिंगे बजा रहे होंगे, it will be the war declared from heaven upon Antichrist and everybody who is उसके साथ जो joined है. लेकिन on the other side, it will be the final wake up call from God for His people. क्योंकि क्या है कि यहूदियों में से भी लोग खुदावंद की हुजूरी में आएंगे और अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे. एंड द होल चर्च, लिखा है कि मेरी कुछ और भेड़ें भी हैं जो इस गले की नहीं है. सो देयर विल बी वन शेपर्ड एंड वन फ्लॉक. गैर कौमें और यहूदी सारे मिलकर जो कि खुदावंद पर ईमान ले आएंगे. यहूदियों में से 1,44,000 लोग जो है वो खुदावंद पर ईमान लाएंगे. हर कबीले में से ये आखिरी जमाना के बिलीवर्स हैं. एंड द चर्च, जिसके बारे में लिखा है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता था. वो हर कौम, कबीले, अहले जुबान में से थे. दे वर फ्रॉम एवरी ट्राइब एंड टंग एंड दे ऑल गॉट टुगेदर एंड दे वर ऑल टेकन अप इनटू हेवन. क्योंकि लिखा है कि जब उसने पूछा, वन ऑफ द जो एल्डर्स थे, उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता. यूहन्ना कहते हैं. उसने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं और ये इस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं. और 1 Corinthians chapter 15 में लिखा है और उसकी वर्स 50 में लिखा है, ऐ भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही की वारिस नहीं हो सकते, ना फना बका की वारिस हो सकती है. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे. ये एक दम में होगा, एक पल में. लास्ट ट्रम्पेट, पिछला नरसिंगा. लास्ट ट्रम्पेट का क्या मतलब है? देयर आर few trumpets before it and last trumpet is the 7th trumpet जो कि रेवलेशन में बजाएगा. लिखा है कि जब वो फूंका जाएगा तो मुर्दे गैर फानी हालत में उठ खड़े होंगे. with the shout of proclamation, with archangel Michael, with the loud blast of the trumpet, hallelujah, Christ will come and the people will rise from the dead. और लिखा है कि जो खड़े हैं, जो जिंदा हैं, वो बदल जाएंगे. So either you will be in the dust or you will be there standing. उस वक्त हमारा देखना बनता है, because we won't be beating our chest. हम अपनी छाती नहीं पीटेंगे. जो खड़े हैं वो बदल जाएंगे. Will be transformed. You will be given a glorified body. और जो मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे. अगर आपका कोई ईमानदार कहीं पे लाहौर में या पाकिस्तान में या इंडिया में buried है, they will rise from their graves. Hallelujah. जहां पर भी ईमानदार है, लेकिन शर्त क्या है? ईमानदार. हालेलुया. उसने कहा जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, अब सोते हैं. दे आर स्लीपिंग, दे आर वेटिंग. जब कोई सो रहा होता है, एन अलार्म वेक्स देम अप. हालेलुया. ये जो नरसिंह है ये अलार्म की तरह. उसके लिए हमें क्या करना है? सो वन हैज टू डाई इन ऑर्डर टू बी रेजरेक्टेड. ऐसे ही है. रेजरेक्शन तो उसी को मिलेगी ना जो डाई होगा, मरेगा. सो मरने के लिए क्या जरूरी है? वी हैव टू कैरी द साइन ऑफ हिज डेथ इन आवर हार्ट्स. रोमन्स चैप्टर 6 में जाते हैं और उसकी वर्स 3 में देखते हैं. क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया. बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के लिए. सो इफ वी बीन बैप्टाइज्ड इन जीसस क्राइस्ट, वी हैव बीन इंक्लूडेड इन हिज डेथ. मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हो गए. सो एज सून एज यू आर टेकन इनटू द वाटर, यू आर बरीड विद क्राइस्ट. और जब आप बाहर आते हैं, यू राइज फ्रॉम द डेड. चाहे ये एज अ साइन करें, बट देन यू कैरी द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन यू. हालेलुया. आप लेके चल रहे हैं उसको. सो इफ यू आर बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिली और नॉट क्रिश्चियन फैमिली, बचपन में बपतिस्मा लिया हुआ है, इट्स नॉट गोना काउंट बिकॉज़ दैट वाज़न्ट योर डिसीजन. बचपन के बपतिस्मे वो आपके माँ बाप का डिसीजन था आपको डेडिकेट करेंगे. यू हैव टू बी बॉर्न अगेन. निकोदेमस ने कहा कि मैं क्या करूं? तू उस्ताद है, तो मुझे बता मैं क्या करूं. कि तुझे नए सिरे से पैदा होना है. उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट में कैसे जा सकता, मैं तो ग्रोन अप हूं. उसने कहा कि तू इस्राएल का उस्ताद है, यू डोंट इवन रियलाइज. तुम्हें समझ नहीं आती ये बात. लिखा है कि जो पानी से और रूह से पैदा होते हैं. पानी से कैसे पैदा होते हैं? कि जब हम अपनी माँ के पेट से. पानी इज अ फिजिकल एंटिटी. जब हम अपनी माँ के पेट में थे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये वाटर बैप्टिज्म एंड होली स्पिरिट बैप्टिज्म की बात है. नो, पानी से और रूह से. या जीसस ने कहा कि पहले तू पानी से पैदा होगा, व्हेन यू आर नेचुरली बॉर्न.
थ्रू द वाटर्स ऑफ योर मदर्स वूम। उसके बाद रूह से पैदा हो। रूह से कब पैदा होगा? जब आप बपतिस्मा लोगे। हालेलुया। जब आप तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे और खुदावंद के और पाक रूह फिर तुम्हें इनाम में मिलेगा। हालेलुया। And that's why Holy Spirit was given, so then the church is ready with the gifts, ministries, फल, खिदमतें, नेमतें, ताकि कलीसिया तैयार हो जाए और मसीह की आमद के लिए अपने आप को बना और संवार कर। क्योंकि उसने कहा कि आओ मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। Let me show you the bride of Christ. हालेलुया। ब्राइड ऑफ, उसने अपने आप को संवार लिया है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसने अपना जो है वो अपने आप को जो है उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। हमारी बहनें जो हैं वो जनरली लेट आती हैं चर्च में, बिकॉज दे टेक अ लॉट लॉन्गर टू गेट रेडी। मेकअप है, देयर इज सो मेनी थिंग्स। मुझे किसी ने तुसी की कर दे तैयारी, मैं कहा जी मैं नहा के निविया का लोशन ला के जेल लगाता है, लेकिन हमारी बहनों को बहुत कुछ करना है। दैट्स हाउ इट्स नेचुरल। दुल्हन जो है वो तैयार होती है, और आप ये देखें कि 9 out of 10 टाइम्स क्या होता है कि जब निकाह हो रहा था, भाई साहब आपने तो पढ़ाई कि दुल्हन हमेशा लेट आती है ना। कहते जी कुड़ी वाले जो है तो है, एवरी टाइम दे से इट्स बिकॉज ऑफ द ब्राइड साइड हम लेट हो रहे हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज शी टेक्स अ लॉट लॉन्गर, इसलिए हमें खुदा ने कहा कर दिया। लेकिन बाइबल में एक और चीज भी लिखी है। बाइबल में लिखा है कि दुल्हा ने आने में देर लगी। 10 कुमारियों की जब हम तमसील पढ़ते हैं ना, लिखा है कि दुल्हा ने आने में देर लगाई, तो जो तैयार नहीं थी वो एक्सपोज हो गई। मूसेस के बारे में लिखा है कि मूसा पहाड़ पर 40 दिन से बैठा हुआ था और उसने देर लगाई। गॉड हेल्ड हिम बैक सो देन ही कुड एक्सपोज द अनराइचियसनेस, और लोगों के दिल के जो बुराई जो नजर आती, और पीछे उन्होंने क्या किया? बछड़ा बना लिया। उन्होंने कहा जी पता नहीं उसे मर कब गया, हमें कोई और गॉड चाहिए। तो बाइबल में लिखा है कि दुल्हा ने आने में देर लगाई दिस टाइम अराउंड, और जिनके पास तेल नहीं था उनके चिराग बुझने लगे। ऑन द अदर साइड बाइबल आल्सो सेज कि खुदा देर करता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। सो अगर देर हो रही है, दैट्स द टाइम दैट ही इज गिविंग अस। वो हमारे लिए गनीमत है, वक्त को गनीमत जाना। लेकिन ऐसा ना हो कि ये देरी जो है वो हमें एक्सपोज हो, और कलीसिया जो है एक्सपोज हो जाए। एज सुन एज वी आर एक्सपोज, और उसने लिखा है कि वो दिन आएगा चोर की तरह आ जाएगा, बहुत सारे लोग नंगे पन में, they'll be found naked, और they'll run around naked। और क्या होता था कि पुराने दौर में काहिन क्या करता था कि जो सरदार काहिन था, ये ट्रेडिशन है कि जो जूनियर काहिन होते थे ना, वो सो जाते थे जिनको हैकल के अंदर टेम्पल के, और वो क्या करते थे उनके कपड़ों में आग लगा देता था, वो अपने लिबादा उतार के भाग जाते थे अंडरवेयर में, क्योंकि उनके कपड़े जलने लग जाते थे। वो रात को आता था कि ये ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरीके से दैट्स द एनालॉजी दैट जॉन इज गिविंग। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि योर नेकेडनेस इज एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ द थिंग। सो हमें क्या करना है? सो एज वी अंडरस्टैंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइमलाइन हैज बीन फुलफिल्ड, दैट आल्सो प्रूव्स कि वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। अगर वो सब कुछ हुआ है तो ये जो आखिर में लिखा है ये भी होगा। हालेलुया। अगर होगा तो फिर हमें रेडी होना है। रेडी होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बी बॉर्न अगेन। और बॉर्न अगेन होने का तरीका क्या है? अपने मुंह से लिखा है कि अगर तो अपने मुंह से इकरार करे कि वो मेरा खुदावंद है, तो उसके मरने और जीतने को माने। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ईमान रखता हूँ रूल पाक खुदावंद यीशु मसीह पर, कि खुदा का इकलौता बेटा तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए खड़ा। हालेलुया। इफ वी बिलीव इन दैट, देन we must carry his death and resurrection in our bodies, in our soul, in our spirit. वो कैसे होगा? जब हम बपतिस्मा लेंगे। As soon as that is done, we qualify. हमारे कुल बादशाह का पासपोर्ट आ गया, and then we must live according to his kingdom's laws. हालेलुया। हमें खुदा के हुक्मों के मुताबिक रास्तबाजी की जिंदगी गुजारनी, and live with a ready mindset। हमें तैयारी की रूह के साथ रहना है, because क्या है कि मुसीबत का दौर आने वाला है, और आप लिखे कि उस औरत को पहुंचाया गया बियाबान में, और भी पार्ट ऑफ दैट वुमन। उस औरत का हिस्सा है, वो है कलीसिया। तो कलीसिया कब आप क्वालिफाई करते हैं? कमिंग टू द चर्च एंड पुटिंग मनी इन द चंदा वाली जो बॉक्स है उसमें, दैट डजंट मेक यू द चर्च। यू नो, गोइंग टू द चर्च एवरी संडे डजंट मेक यू द रियल चर्च इज द ब्राइड ऑफ गॉड।
जिसने अपने आप को तैयार किया। So there are two type of people in the church, the nominals or the regulars, जो आते हैं आके चले जाते हैं, and the other ones are the ones that are ready and born again. ठीक है, तो हमें जो है वो चर्च मेंबर नहीं बनना, हमें उस कलीसिया का हिस्सा बनना जो कि ब्राइड है, जो कि दुल्हन है, और जब हम उसमें शामिल होंगे, we'll be taken into that place यहाँ पर उसने लिखा है कि 3.5 साल तक जो है उनकी परवरिश की। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, रोटी लो उनको प्रॉब्लम हुई, कब्बे आग इसको देते थे, बेवा के पास चला गया, उनका खाना ही नहीं होता, एक दिन का रोटी उनके पास। बहुत सारे लोग प्रेप कर रहे हैं कि हमने 3.5 साल का राशन जमा कर लेना, क्योंकि एंटी क्राइस्ट ने हमें बाय नहीं करने देते। हु केयर्स कि हमारे पास खुदावंद है जो यहोवा जी, हालेलुया, हमारे पास वो है जो आसमान पर संबंध है, हमारे पास वो है जो हमारी हिफाजत। एक है कि दिन के वक्त आग का वो जो है अबर बनता था, रात के वक्त आग का शोला सुकून बनता था, and he was protecting. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। Praise God. हम अपने सर को झुकाएंगे। And if you want to be ready, या अपने आप को rededicate करना है। अगर आप अभी तक, if you haven't given your life to Christ, maybe today is the time you will make a decision. The time might not come again. So maybe that was not a coincidence that you are here listening to these words. But then God may want to speak to you and be included in His bride. आइए हम born again, और उसके लिए हमें अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, और अगर आप में से कोई भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं, if you want to accept Him as your Savior, as your Lord, and you want to submit into His kingdom, and you want to be born again, today is the day. Nobody is watching, and even if they are, who cares? आप अपना हाथ खुदावंद को, this is between you and Him. Raise your hand in confession and say, Lord, I am a sinner. I want to be part of your kingdom. I want to be part of your coming. I want to join. I खुदावंद मैं तुझे join करना चाहता हूँ। जब तू आए तो अगर मैं मर चुका हुआ उस दिन, तो मैं जिंदा हो जाऊँ, और अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं बदल जाऊँ। I'll be transformed. और अपनी ज़िंदगी खुदावंद praise God. मैं आपके लिए दुआ करूँगा। उसके बाद if anybody wants to pray for अपनी बीमारी और कमजोरी के लिए, we can pray for the healing as well. So पहले आपकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। Raise your hand, अपना हाथ बढ़ाएं। Everybody, आप अपनी आंखें बंद करें। We don't need to look at each other. बाइबल में लिखा है कि अपने आप को जांच लो। जैसे हम होली कम्युनियन लेते हैं तो लिखा है कि बस हर कोई अपने आप को आजमा ले, जांच लो। Let's examine ourselves. And if we were born again but we are faltering and we are falling behind, और हम सुस्त पड़ गए, तो आइए हम अपने आप को रीफिल करें, पाकरू को मांगें, खुदावंद से कहें क्या है, खुदावंद तो मुझे भर दे, आए पाकरू तो मुझे भर दे, मेरी सहायता कर। खुदावंद जितनों ने अपने आप को आज तेरे सामने पेश किया, एवरीबॉडी यहाँ पर मौजूद है, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आए खुदावंद तो हमें ले, हमारे गुनाहों को माफ कर। हम कन्फेस करते हैं that we are sinners and we need your mercy and we need your grace. तेरे ग्रेस और तेरी मर्सी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐ खुदा हमें शामिल करो। हम तौबा करते हैं और तुझे एक्सेप्ट करते हैं कि you are my Lord and Savior. You died for me and you rose from the dead. तू जिंदा हो गया ताकि मैं जिंदा हो जाऊँ। तूने मौत और कब्र पर फतह पाई। इसी तरह खुदा मैं भी तेरी आमद के वक्त मौत पर फतह पाऊँ और उस नरसिंगे के फूके जाने के टाइम, ऐ खुदावंद, at the time of blowing of the trumpet, I will raise from the dead and I'll be transformed into the glorified body, imperishable body, जो कि कभी खत्म ना हो। इसी यीशु के नाम अभी मौका है कि हम दुआ में झुके रहें। And if you are suffering from anything,